In today's lecture we will discuss the next point of suppositories. Okay, in previous lecture we will discuss the we will learn the type definition, after that type of suppositories, disadvantages of suppositories. Okay, in the and also included in list the types of suppositories, that is 5 types of suppositories. First is rectal, second is vaginal, third is nasal, and fourth is urethral, and fifth is ear cones. And next one is that nutrients of suppositories, that is tablet suppositories, layered suppositories, capsule suppositories, coated suppositories, and disposable molds. Okay, in today's lecture we will learn the in detail the types of suppositories. So let's see the first, that is rectal suppositories. As the name indicate, this rectal suppositories is used to inserted or introduction into rectal, so called as rectal suppositories. The weight of suppositories used in children is about 1 gram and in adult about 2 gram. Okay, the shape of suppositories used in rectal, इसका शेप है रेक्टल. रेक्टल इज टॉर्पिडो और कोन लाइक शेप में होना चाहिए ये सपोजिटरी जो हम प्रिपेयर करने वाले हैं. एज लाइक हम लिपस्टिक को जैसे प्रिपेयर करते हैं, उसका जो बैटर होता है, उसका जो मैटर जो होता है, जो प्रिपरेशन का मैटर जो होता है, उसको हम मोल्ड्स के अंदर डालकर देन उसको हम फ्रीज करते हैं, देन उसको साइड में निकालते हैं. उसी तरह से सपोजिटरीज को भी हमने प्रिपेयर करना है. उसका जो वैक्सी सब्सटेंस जो बेस है सब उसको मेल्ट करने के बाद हमने एक सपोजिटरी का एक मोल्ड होता है अलग अलग डिफरेंट शेप में, जिस भी टाइप में हमने शेप में प्रिपेयर करना है तो उसको हम उसकी उसी तरह से मोल्ड्स हम उसका लेंगे प्रिपेयर करने के लिए. देन उसके बाद उसके अंदर डालेंगे हमारा जो बैटर है, देन उसको फ्रीज करेंगे, देन उसको कट करके इन द प्रॉपर शेप में हम उसको फिलअप करेंगे. ओके, और उसको जो लेबलिंग है वो उसकी लेबलिंग के द्वारा उसको पैकअप करेंगे. तो रेक्टल सपोजिटरीज, एज द नेम इंडिकेट, रेक्टल मीन्स इट इज यूज टू इंसर्टेड इन टू रेक्टल. द वेट ऑफ सपोजिटरीज इन बिटवीन 1 to 2 gram. 1 gram suppositories is used to insert in children and in adult that is 2 gram. The shape of suppository used in rectal is torpedo cone like shape. Okay, the length is about 3 centimeter उसकी लेंथ होनी चाहिए rectal suppositories की. Okay, next one is that urethral suppositories. The weight of this type is 2 to 4 gram. In between 2 to 4 gram का urethral suppositories होना चाहिए. As the name indicate, urethral suppositories also called as urethral bogus, which is included or mentioned in your book. Okay, now you are to learn from also book. Okay, I will send a PDF of this chapter. Okay, you write down one by one all of these chapters notes. Okay, this intended for males with weight that is 4 gram each and are 100 to 150 millimeter long. Okay, and also it is available in a penicillin shape. This is thin, long and cylindrical forms and it is rounded at one end to facilitate insertion. Okay, their weight is varies between 2 to 4 gram. Okay, and this is called as urethral bogus. For we have to introduce into urethra for called as urethral bogus or urethral suppositories. Next one is vaginal suppositories. It is oviform shape and it is about different weight, that is in someone it is included that is 3 to 5 gram in weight, and in someone it is weight that is 4 to 8 gram. In your book mention the 4 to 8 gram weight, and also it is available in 3 to 5 gram also weight. It contains the drug which are used in treatment of infections. इन्फेक्शन जो होता है फीमेल्स के लिए उसके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है. सच ऑफ इन्फेक्शन दैट इज जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट. जेनिटो यूरिनरी जो ट्रैक होता है वहाँ पर कुछ इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल या कुछ इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ पर उसको ट्रीट करने के लिए एज अ लोकल इफेक्ट, वहाँ पर लोकल इफेक्ट जो होता है उसको कम करने के लिए या ट्रीटमेंट करने के लिए, और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए वजाइनल सपोजिटरीज का यूज़ किया जाता है. मीन फॉर कॉन्ट्रासेप्शन ऑल्सो. ओके, it contains the combination of polyethylene glycol of a different molecular weights as a suppository basis. तो suppository basis के अंदर हम polyethylene glycol का यूज़ करते हैं. ओके, as a suppository basis. Okay, this is called as vaginal suppositories. Vaginal suppositories are mainly used for their local action. Okay, on the vagina. Nowadays vaginal tablets and vaginal capsules are also available which has submitted
द वजाइनल सपोजिटरीज। तो नाउ डेज में हम वजाइनल टैबलेट्स और वजाइनल कैप्सूल्स भी प्रिपेयर किए जाते हैं इसको, ओके, ॲज अ वजाइनल सपोजिटरीज म्हणून. त्यानंतर नेक्स्ट इज nasal suppositories. Okay, as the name indicate, nasal suppositories. These suppositories are meant for introduction into nasal cavity. Nasal जो cavity है वहाँ पर introduce किया जाता है, इसको insert किया जाता है. It is available in 1 gram in weight. Okay. The glycerogelatin is used as suppository base. Here also base is used as glycerogelatin base used for nasal suppositories and which is available in 1 gram weight. Okay, used for introduction to or insert into nasal cavity called as nasal suppositories. Next one is ear cone. It is also known as ordinaries. These are meant for introduction into ear. Okay, as the name indicate, ear cone or ear which is inserted into ears, okay, called as ordinaries. It is cylindrical in shape, okay, and it is about 1 gram in weight. इसका भी weight 1 gram में होना चाहिए. ओके, ईयर कोन्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड विथ थियोब्रोमा ऑयल. थियोब्रोमा ऑयल इसके अंदर यूज़ किया जाता है. ये थे कुछ टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज जो कि उसका नाम में ही उसका यूज़ वहाँ पर लिखा हुआ होता है. जैसे रेक्टल, तो रेक्टल के लिए इंसर्ट किया जाता है. वजाइनल तो वजाना के अंदर इसको इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. देन नेसल है तो नेसल के अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है. यूरेथ्रा है तो यूरेथ्रल के अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है. ईयर तो ईयर के अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है. और सबका एक आपको यहाँ पर याद ये रखना है आपको. एक तो एज एन इंडिकेट वहाँ पर एक पॉइंट आप लिख सकते हैं. देन नेक्स्ट इज वहाँ पर चिल्ड्रंस अडल्ट के लिए यूज़ करना है. देन नेक्स्ट थिंग इज दैट उसके ग्राम जो है, ग्राम आपको याद रखना है. रेक्टल के लिए 1 to 2 ग्राम, देन वजाइनल के लिए 4 to 8 और समवॉट इन 3 to 5 ग्राम यूज. देन नेसल सपोजिटरीज के अंदर 1 ग्राम हमने यूज़ करना है. एंड देन जो यूरेथ्रल सपोजिटरी वहाँ पर आपने 2 to 4 ग्राम की सपोजिटरी से प्रिपेयर करनी है आपको. देन ईयर कोन, ओके, ईयर कोन में भी 1 ग्राम की बनानी है आपको ईयर कोन की जो सपोजिटरीज. ओके, here various shapes of suppositories are included. See, various structure or various types of or shape of suppositories we have to see in the slides. Okay. Then next point is that newer concept of suppositories. Okay, newer concept of suppositories which includes the 4 different types of suppositories. First is tablets, second is layered suppositories, third is coated suppositories, fourth is capsule suppositories. Okay, so let's see one by one all of these newer concept of suppositories. First is tablet suppositories. This type of tablets prepared by compression like tablets. जैसे हम फार्मास्यूटिक फर्स्ट में जैसे टैबलेट को कंप्रेस करते थे, उसी तरह के से जो न्यू कंसेप्ट, जो न्यू इनोवेशन है सपोजिटरीज का, वो यहाँ पर बताया गया है. जो न्यू नाउ डेज दिस न्यूअर कंसेप्ट ऑल्सो फॉलो और रेगुलरली यूज दिस type of suppositories also. Okay, new concepts or new innovations of suppositories, that is tablet suppositories. Okay, this type of tablets prepared by compression like tablets. जैसे हम टैबलेट्स को कंप्रेस करते थे, उसी तरह से टैबलेट सपोजिटरीज को कंप्रेस करके प्रिपेयर किया जाता है. सच अ टाइप ऑफ सपोजिटरीज यूज्ड फॉर रेक्टल एंड वजाइनल पर्पजेस. इस टाइप की जो सपोजिटरीज होते हैं जो कि टैबलेट सपोजिटरीज है, इसका यूज़ किया जाता है रेक्टल और वजाइनल पर्पज़ के लिए. द पेसारिस टैबलेट्स. अब पेसारिस क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे के जो हमारा पॉइंट है चैप्टर का जो नाम है पेसारिस, वो हम स्टडी करेंगे पेसारिस क्या होती है. जस्ट लाइक सपोजिटरीज की तरह ही होती है पेसारिस भी. तो जस्ट लाइक जो सपोजिटरीज होती है उसके जो रेक्टल सपोजिटरी जो होती है, सॉरी वजाना सपोजिटरीज, तो रेक्टल सपोजिटरीज और वजानल सपोजिटरीज जो होती है उसी तरह से ये भी पेसारिस भी होती है. लेकिन पेसारिस क्या होती है कि दे आर मेंट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू वजाना. लेकिन ये जो पेसारिस होती है सिर्फ और सिर्फ वजाना में इंसर्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. दे आर लार्जर देन रेक्टल सपोजिटरीज. जो रेक्टल सपोजिटरीज था जिसका वेट था 1 to 2 ग्राम, उससे ये बड़ी होती है पेसारिस. दे आर लार्जर देन रेक्टल सपोजिटरीज. रेक्टल सपोजिटरीज का जो वेट होता है उससे ये बड़ी होती है, लार्जर होती है. एंड वेरी वेट फ्रॉम 4 to 8 ग्राम और मोर. 4 से 8 ग्राम तक होती है और उससे ज़्यादा भी इसका वेट होता है. जैसे कि रेक्टल सपोजिटरीज 1 to 2 ग्राम में थी तो उससे इसका वेट ज़्यादा होता है. 4 to 8 ग्राम में तक होती है और उससे ज़्यादा भी होती है. और उसका शेप कोनिकल वेट शेप और रॉड शेप में इसका वेट होता है, शेप होता है.
कोनिकल वेज एंड रॉड शेप में ये अवेलेबल होती है। पेसारीज सिर्फ और सिर्फ वजाना में इंट्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद रेक्टल जो सपोजिटरीज होती है उससे ये बड़ी होती है एंड वेट इज़ 4 to 8 ग्राम एंड ऑल्सो मोर इज वेट इज़ अवेलेबल इन द पेसारीज। ओके, तो पेसारीज टैबलेट सपोजिटरीज आज प्रेजेंट इन आलमंड लाइक शेप। जो पेसारीज टैबलेट होती है जो कि प्रिपेयर की जाती है आलमंड लाइक शेप में भी इसको प्रिपेयर किया जाता है टैबलेट सपोजिटरीज के अंदर बताया गया है यहाँ पर। रेक्टल टैबलेट्स जो होती है कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ मटेरियल सच एज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल फॉर प्रोटेक्टिंग। तो रेक्टल जो टैबलेट होती है उसको कवर थिन लेयर का कवर किया जाता है वहाँ पर एज सच एज अ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल फॉर द प्रोटेक्टिंग। प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का थिन लेयर यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है ऊपर टैबलेट के ऊपर जो कि टैबलेट सपोजिटरीज है। ओके, तो एज लाइक टैबलेट जैसे कंप्रेस करते हैं उसी तरह से इसको भी प्रिपेयर किया जाता है टैबलेट सपोजिटरीज को। ओके, जैसे भी ये टैबलेट को हम इंसर्ट करेंगे वहाँ पर वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। देन इसके बाद स्लोली उसको डिसइंटीग्रेशन होने के बाद उसका एब्सॉर्प्शन वहाँ पर आपको वहाँ पर लोकली उसका एब्सॉर्प्शन वहाँ पर मिलेगा आपको यहाँ पर रेक्टल में और वजाना में। ओके, एज अ टैबलेट सपोजिटरीज। देन नेक्स्ट इज लेयर्ड सपोजिटरीज में क्या होता है, लेयर्ड टाइप की जो सपोजिटरीज होती है वो किस तरह से होती है। इन दैट टाइप ऑफ सपोजिटरीज आर कंटेन्स डिफरेंट ड्रग्स इन डिफरेंट लेयर्स। ओके, डिफरेंट ड्रग जो अलग अलग ड्रग होते हैं वो अलग अलग ड्रग को हमने लेना है लेयर सपोजिटरीज में। डिफरेंट ड्रग्स इन डिफरेंट लेयर, अलग अलग लेयर से हम डिफरेंट ड्रग को प्रिपेयर करेंगे एज अ लेयर सपोजिटरीज सो दैट इनकम्पैटिबिलिटी ड्रग्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। सिमिलरली ड्रग्स, तो यहाँ क्या करेंगे अलग अलग लेयर का डिफरेंट लेयर में हम डिफरेंट ड्रग्स को ऐड करके हम लेयर सपोजिटरीज को प्रिपेयर करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो इनकम्पैटिबिलिटी फॉर्म होती है जिससे हम जैसा इनकम्पैटिबिलिटी चैप्टर जैसे स्टडी किए थे उसके अंदर हम हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दिस इनकम्पैटिबिलिटी, व्हाट प्रोटेक्शन व्हाट प्रिवेंशन हाउ टू मेक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट इनकम्पैटिबिलिटी फॉर्मुलेशन। ओके, तो उस तरह से इनकम्पैटिबिलिटी को हम डिफरेंट ड्रग को अलग अलग लेयर में हम उसको प्रिपेयर करेंगे। इससे इनकम्पैटिबिलिटी को अवॉइड किया जा सकता है इन बिटवीन ड्रग्स। ओके, Similarly, drugs having different melting points can be incorporated to control the absorption rate. यहाँ पर अलग अलग क्या करेंगे ड्रग्स हैविंग डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं उसको हम इनकॉर्पोरेट मतलब मिक्स करेंगे टू और उसका कंट्रोल जो रेट है एब्सॉर्प्शन का उसको एब्सॉर्प्शन रेट को कंट्रोल करते हुए हम अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट को अलग अलग लेयर में उसको बाइंड अप करेंगे, उसको लेयर सपोजिटरी में प्रिपेयर करेंगे। अब उसकी जो प्रिपरेशन है जितना आपको बताया गया है जितना सिलेबस में है उतना ही आप एक उसका इन जनरल डिटेल आप उसको याद में रखिए, ज़्यादा इन डिटेल उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये था लेयर सपोजिटरीज। ये लेयर सपोजिटरीज में क्या याद रखना है आपको, अलग अलग ड्रग्स को लेते हुए हमने डिफरेंट अलग अलग लेयर में उसको कॉम्बिनेशन करते हुए अलग अलग लेयर में उसको हम लेयर सपोजिटरीज को प्रिपेयर करेंगे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो इनकम्पैटिबिलिटी फॉर्म होती है ड्रग के अंदर वो उसको ओवरकम करने आ सकता है यहाँ पर, और प्रिवेंशन कर सकते हैं हम कि इनकम्पैटिबिलिटी ड्रग्स जो होती है इनकम्पैटिबिलिटी, क्योंकि जो अलग अलग ड्रग्स हम केमिकल ड्रग्स लेते हैं कॉम्बिनेशन फॉर्म में तो उसको वहाँ पर सेपरेट किया जाता है क्योंकि वहाँ लेयर फॉर्म कर रहे हैं हम अलग अलग लेयर में उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। इसकी वजह से इनकम्पैटिबिलिटी से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको अलग अवॉइड कर सकते हैं। सिमिलरली ड्रग्स हैविंग डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट के जो ड्रग होते हैं उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे और उसका जो कंट्रोल है एब्सॉर्प्शन रेट उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस लेयर्ड सपोजिटरीज। ओके, नेक्स्ट वन इज दैट कोटेड सपोजिटरीज। अब कोटेड मतलब क्या, एट द नेम इंडिकेट कुछ तो सपोजिटरीज है उसको हम कोट करेंगे। ओके, कोटेड इन दैट टाइप ऑफ सपोजिटरीज कंटेन्स पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल एसिटाइल अल्कोहल। इस टाइप की जो कोटेड सपोजिटरीज होती हैं तो उसके अंदर हमने क्या करना होता है कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल और एसिटाइल अल्कोहल का हम उसका यूज़ करते हैं यहाँ पर। दोज मटेरियल्स कंट्रोल्स देयर डिसइंटीग्रेशन रेट to impart lubricant properties and to provide protection action during storage। तो यहाँ पर बताया गया है कि दोज मटेरियल कंट्रोल दे, इसका जो मटेरियल होता है अंदर हमने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कोटेड सपोजिटरीज है तो उसको हम डिप करने के लिए जो सोल्यूशन है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल और एसिटाइल अल्कोहल का जो हमारी जो सपोजिटरीज है उसको हम डिप करेंगे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल और एसिटाइल अल्कोहल के अंदर, उसको कोट करेंगे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल से। देन दोज मटेरियल्स कंट्रोल देयर डिसइंटीग्रेशन रेट टू इम्पार्ट लुब्रिकेंट प्रॉपर्टीज एंड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एक्शन ड्यूरिंग स्टोरेज। तो इसको डिप करने की वजह से इसको कोट करने की वजह पॉलीइथाइलिन
ग्लाइकॉल से, तो वो जो लुब्रिकेटिंग उसका एक्शन है, लुब्रिकेटिंग जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है उसको वो इम्पार्ट करेगी बहुत टाइम तक, और उसको स्टोर एज अ प्रोटेक्शन एक्शन जो होता है उसके अंदर उसको स्टोर करते हुए वो रखेगी ड्यू टू गिविंग द कोटिंग एक्शन ऑन दिस सपोजिटरीज एज द पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल और सिटाइल अल्कोहल. ओके, देन नेक्स्ट इज, तो ये थे कोटेड सपोजिटरीज. देन नेक्स्ट इज capsule suppositories. Soft gelatin capsules of different shapes and size are prepared in that type of suppositories. जो कि हमने कैप्सूल जो स्टडी किए थे, जो कि दो उसके टाइप थे, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स. तो उसी तरह से हम सपोजिटरीज प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल ऑफ डिफरेंट शेप में हमने प्रिपेयर करेंगे कैप्सूल सपोजिटरीज एंड साइज आर प्रिपेयर्ड इन दैट टाइप ऑफ सपोजिटरीज. उसकी साइज के हिसाब से हम उसको प्रिपेयर करेंगे. In that type of capsule suppositories are filled with liquids, semi-solids और solids material. तो ये जो कैप्सूल है हमारा, इसके अंदर फिलअप करेंगे लिक्विड्स का, सेमी सॉलिड्स का और थोड़ा सा सॉलिड्स का भी हम उसके अंदर फिलअप कर सकते हैं. दिस टाइप ऑफ कैप्सूल्स आर इंक्रीजिंग इन पॉपुलैरिटी. ये टाइप के जो कैप्सूल्स हैं, जो इसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केटेड के अंदर, पॉपुलरली उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसकी मार्केटिंग जो वैल्यू है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ सपोजिटरीज. ओके, नेक्स्ट इज जो नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है सपोजिटरीज बेसिस. उसके पहले एक रिमेनिंग स्मॉल बिट है, वो हम स्टडी कर लेते हैं. डिस्पोजेबल माउल्ट्स, जो कि आपकी बुक के अंदर मेंशन किया गया है. डिस्पोजेबल माउल्ट्स मतलब क्या होता है कि द माउल्ट्स आर मेड अप ऑफ अ प्लास्टिक मटेरियल और टीन फॉइल्स. इसको प्रिपेयर किया जाता है प्लास्टिक मटेरियल जो और टीन फॉइल्स होता है उससे प्रिपेयर किया जाता है डिस्पोजेबल मोल्ड्स को. द सपोजिटरीज मटेरियल इज पोर्ड इनटू द डिस्पोजेबल मोल्ड्स एंड कूल्ड. जो हमने प्रिपेयर किया है डिस्पोजेबल मोल्ड्स एक होता है, एक अलग अलग मोल्ड्स भी होते हैं. यहाँ पर डिस्पोजेबल मोल्ड्स का बताया है, उन्होंने मेंशन किया है आपकी बुक में कि वो डिस्पोजेबल मोल्ड्स प्रिपेयर किया जाता है प्लास्टिक मटेरियल और टिन फॉइल से. देन इसके बाद हम जो हमारा सपोजिटरी का मटेरियल है उसको पोर करेंगे हम डिस्पोजेबल मोल्ड के अंदर, उसको कूल करेंगे. द एक्सेस ऑफ द मास इज ट्रिम्ड. जैसे हम लिपस्टिक का जो प्रिपेयर करते थे मोल्ड्स के अंदर हम डालते थे, उसको देन ट्रिम्ड करते थे, मतलब जो शार्प नाइफ होती है हमारी, शार्प नाइफ से उसको और ब्लेड से उसका जो एक्सेस मटेरियल है उसको साइड में कर देते हैं. These आर देन पैक्ड इन अ कार्टून्स. देन उसको जो कार्टून्स होते हैं, जो बॉक्स होते हैं, उसके अंदर जो सपोजिटरीज है उसको हम पैकअप करते हैं. देन जो सपोजिटरी उसको ही हम क्या बोलेंगे डिस्पोजेबल मोल्ड्स. उस जो हमने प्रिपेयर किए थे हमारा जो मैटर था उसका हमने मटेरियल जो था हमारा पोर करे थे डिस्पोजेबल मोल्ड्स के अंदर. देन एक्सेस जो क्वांटिटी था कूल करने के बाद उसको हमने कट कर लिए थे एंड देन कार्टून जो बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर हमने उसको पैकअप कर लिए. द डिस्पोजेबल मोल्ड्स आर चीपर एंड एलिगेंट. चीपर है ये, एलिगेंट है ये. देयर शेप कैन बी चेंज्ड एट अ लोअर कॉस्ट. उसका शेप चेंज किया जाता है एट लोअर कॉस्ट. उसके अलग अलग कॉस्ट के हिसाब से उसको चेंज किया जाता है. ओके, देन उसके बाद उसका जैसे भी हम कार्टून जो बॉक्स होते हैं बॉक्स के अंदर डालने के बाद उसको हम डिस्पोज कर सकते हैं. ओके, तो ये था डिस्पोजेबल मोल्ड्स. दो डिस्पोजेबल मोल्ड्स भी होते हैं. देन अलग अलग जैसे हम प्लास्टिक के मोल्ड्स होते हैं उसी तरह से सपोजिटरीज के भी मोल्ड्स होते हैं, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, अलग अलग मोल्ड्स के भी स्ट्रक्चर और एपरेटस होते हैं. ओके, तो ये स्मॉल बिट आपके बुक में मेंशन किया था, वो मैंने बताया आपको. देन उसके बाद हम स्टडी करते हैं सपोजिटरी बेसिस के अंदर. सपोजिटरी बेसिस के अंदर जो है suppositories bases play important role in the maintaining their shape, solidity and also play important role when inserted into the body cavity. तो suppository का जो बेस है वो एक अलग रोल प्ले करता है, उसका शेप, सॉलिडिटी एंड ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स व्हेन इंसर्टेड इनटू बॉडी कैविटी. ओके, तो जैसे हम सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑइंटमेंट जैसे स्टडी किए थे उसके अंदर जो डिफरेंट बेसिस हमने यूज़ करे थे, उसी तरह से सपोजिटरीज के भी बेसिस हैं जो कि बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट करने के लिए हम एज अ मेल्टिंग उसको मेल्ट करने के लिए सपोजिटरीज बेस का यूज़ करते हैं. देयर आर लार्जर नंबर ऑफ बेसिस यूज्ड अप दैट इज थियोब्रोमा ऑयल, ग्लिसरोजिलेटिन बेस एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल फुलफिल द अबाव मेंशनड रिक्वायरमेंट्स. तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज सपोजिटरीज बेस बोल के हम लेते हैं यहाँ पर, दैट इज थियोब्रोमा ऑयल, ग्लिसरोजिलेटिन एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल. ओके, नेक्स्ट वन इज some of the ideal properties of bases, that is it must
इट मस्ट रिटेन द शेप एंड साइज। जो बेस है, बेस हम लेते हैं, बेस की क्या आइडियल प्रॉपर्टीज़ है, तो उसको वो उसका शेप और साइज रिटेन करते हैं। जो बेस हम सपोजिटरीज के लेते हैं, सपोजिटरी प्रिपेयर करने में लेते हैं, तो उसका जो शेप है, साइज वो रिटेन होता है। इट शुड मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। जो बेस हम लेने वाले हैं वो बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होना चाहिए। इट शुड भी नॉन इरिटेंट होना चाहिए। नॉन इरिटेंट मतलब जैसा भी हम उसको, जो बेस हम लेने वाले हैं सपोजिटरीज के अंदर, उसको हम प्रिपेयर करने के बाद अगर हम उसको इंसर्ट करेंगे बॉडी कैविटी में, तो वो इरिटेंट ना हो, नॉन इरिटेंट होना चाहिए। इट शुड श्रिंक सफिशिएंटली टू रिमूव फ्रॉम मोल्ड। वो श्रिंक होना चाहिए, जैसे भी हम उसको मोल्ड से निकालेंगे तो वो इट शुड श्रिंक होना चाहिए सफिशिएंटली क्वांटिटी में। इट शुड नॉट इंटरफेयर इन अ रिलीज और एब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग। क्या होना चाहिए? इट शुड नॉट इंटरफेयर इन अ रिलीज और एब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग। वहाँ पर क्या वो कैसा होना चाहिए? तो जैसे भी हम उसको इंसर्ट करेंगे बॉडी के अंदर, तो वहाँ पर उसका एब्सॉर्प्शन होना चाहिए, रिलीज क्वांटिटी में उसका एब्सॉर्प्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई या एब्सॉर्प्शन वहाँ पर नहीं होता है, या कोई वहाँ पर इफेक्ट नहीं मिलता हमको, या कोई इरिटेट करता है, वैसा नहीं होना चाहिए। जैसा भी हम उसको इंसर्ट करेंगे बॉडी कैविटी के अंदर, वहाँ पर आफ्टर सम टाइम विच गिव्स लोकल इफेक्ट और एब्सॉर्प्शन, वहाँ पर एक रिलीज क्वांटिटी में आपको वहाँ पर क्या होना चाहिए? एक मेडिकामेंट का जो इफेक्ट है वहाँ पर हमको दिखाई देना चाहिए। और कोई जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई ट्रीटमेंट या कोई डिसीजेज वहाँ से वो हम कम कर सकते हैं। ओके। शुड परमिट इनकॉर्पोरेशन ऑफ ड्रग। इनका मतलब ड्रग के साथ हम बेसिस को हम ऐड करते हैं। इट शुड बी कंपैटिबल विथ वैरायटी ऑफ ड्रग्स। मतलब जो ड्रग्स हम लेने वाले हैं उसके साथ हमारा जो बेस है उसको वो कंपैटिबल होना चाहिए, यानी उसके अंदर वो अच्छे से मिक्सअप होना चाहिए, या दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छे से एक फाउंड आउट होना चाहिए। ओके। इट शुड बी फिजिकली स्टेबल ऑन स्टोरेज। स्टोरेज करने के बाद फिजिकली वो स्टेबल होना चाहिए। शुड नॉट बी सॉफ्टन और हार्डन ऑन स्टोरेज। मतलब स्टोर करने के बाद या उसको हम स्टोर करेंगे तो अगर ज़्यादा ही हार्ड होना नहीं चाहिए और ज़्यादा ही वो सॉफ्ट होना नहीं चाहिए। जो उसका ऑप्टिमम जो उसका जो स्ट्रेंथ है, ऑप्टिमम जो उसकी सॉफ्टनेस या उसका जो नेचर है वो सेम होना चाहिए। ओके। या एक मेंटेन होना चाहिए उसका ऑप्टिमम जो क्या बोलेंगे उसको, उसका नेचर जो है ऑप्टिमम रहना चाहिए। ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ दैट टाइप ऑफ सपोजिटरीज के अंदर हम स्टडी करेंगे। टाइप ऑफ सपोजिटरी बेसिस के अंदर एक 3 मेन टाइप है सपोजिटरी बेसिस के। फैटी बेसिस उसको बोलेंगे, ऑयली बेसिस और ओलेजनस बेसिस उसको बोलेंगे हम। देन नेक्स्ट इज वाटर सोल्यूबल और वाटर मिसिबल बेसिस और ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक बेसिस। तो वाटर सोल्यूबल और वाटर मिसिबल मतलब हाइड्रोफिलिक, जो वाटर से लव करता है, यानी कि जो वाटर से जिसको अट्रैक्शन है या वाटर के अंदर जो मिक्सअप होता है उसको हम हाइड्रोफिलिक बेसिस बोलेंगे। देन थर्ड वन इज इमल्सिफाइंग बेसिस और ऑल्सो कॉल्ड एज सिंथेटिक बेसिस। ओके। हमारे 3 जो टाइप थे, जैसे ऑयली बेसिस था उसको हम ऑयलेजनस बेसिस बोलेंगे। देन वाटर सोल्यूबल और वाटर मिसिबल बेसिस और इमल्सिफाइंग जो बेस है उसके अंदर सब क्लासिफिकेशन किया गया है। नेक्स्ट वन जो है हमारा ऑयली बेसिस और ऑयलेजनस बेसिस ऑल्सो कॉल्ड एज फैटी बेसिस। ओके, फैटी बेसिस उसको बोलेंगे। तो उसके अंदर 3 अलग अलग उसके पॉइंट इसके अंदर सब पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं, जो कि फर्स्ट है कोका बटर और ऑल्सो कॉल्ड एज थियोब्रोमा ऑयल। Then second is emulsified cocoa butter, and after that hydrogenated oils. In the next lecture in detail we have to discuss all of this classification of suppository bases. Okay, thank you.